Hello students, today we will learn about different types of teeth and how should we take care of our teeth. So let's start with types of teeth. Have you looked your teeth carefully in the mirror? We have 4 kinds of teeth and it has different shape and uses. So first is incisors. Look at your front teeth carefully. We use sharp teeth for cutting and biting, and they are called as incisors or cutting teeth. We have 4 incisors in upper jaw and 4 incisors in lower jaw. Now canines. We have 4 pointed and sharp teeth next to the incisors. 2 in the upper jaw and 2 in lower jaw. We cut food with the help of teeth called canines. They are also called as tearing teeth. Now premolars. These are the flat and wide teeth situated next to the canines. They are used to chew the food. There are 4 premolars in upper jaw and 4 premolars in lower jaw. Now molars. The molars or grinding teeth have flat surface than premolars. They have flat and broad upper surface. They grind the food as we chew. There are 6 molars in each jaw. We use incisors to cut the food, canine to tear the food, and premolars and molars are used to crush, chew, and grind the food. Okay? So now our next topic is care of teeth. If proper care of teeth is not taken, then they become hollow and fall down. So we should take proper care of our teeth. If our permanent tooth fall down, then we don't get new one in its place. See, dear children, if proper care is not taken of your teeth, तो वो क्या होंगे, एकदम सड़ जाएंगे, अंदर से खोखले हो जाएंगे, मतलब अंदर से एकदम हॉलो हो जाएंगे और वो एक दिन क्या हो जाएंगे, फॉलो गिर जाएंगे. ठीक है. और इफ़ सी मिल्क टीथ अगर टूट जाते हैं तो परमानेंट टीथ उसे रिप्लेस कर देते हैं, मतलब दूसरे टीथ आ जाते हैं. बट अगर परमानेंट टीथ सड़ के टूट जाए तो वो कोई दूसरे टीथ से रिप्लेस नहीं हो सकते, वापस कोई भी टीथ नहीं आ सकता है. दैट मीन्स वी डोंट गेट न्यू वन इन इट्स प्लेस. ठीक है. सी द फर्स्ट पॉइंट, द चॉइस ऑफ प्रॉपर फूड. हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है टीथ को केयर करने के लिए, दैट इज द चॉइस ऑफ प्रॉपर फूड. हमें प्रॉपर फूड इंटेक करना चाहिए. ठीक है. लाइक मिल्क, raw vegetables. Raw vegetable means vegetables without cooking. And fibrous food. See, fibrous food means these are the foods which contain high fiber. See, avocado, peach, pear, strawberry, grapes, banana, pineapple, apple, papaya, orange, etc. These are the fruits with the highest fiber. So we should intake these type of fruits in our diet. Okay. So I am reading again that milk, raw vegetables, that is vegetables without cooking. Those vegetables which we can eat without cooking, that we should intake in our diet. एंड फाइब्रस फ्रूट्स जो अभी हमने देखे थे. ठीक है. आर द आइडल फूड फॉर हेल्दी टीथ. ये सारे हेल्दी टीथ के लिए सबसे अच्छे फूड माने जाते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट, मिल्क प्रोवाइड्स अस कैल्शियम. मिल्क हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड करती है. और अ ग्रोविंग चाइल्ड, जैसे कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मिल्क पीना चाहिए. एटलीस्ट 3 to 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन अ डे. ठीक है. टफ एंड फाइब्रस फूड हेल्प अवर टीथ टू एक्सरसाइज. जो एकदम टफ कड़क फूड होते हैं, फाइब्रस फूड होते हैं, वो हमारे टीथ को, क्योंकि हमारे टीथ को उसी से एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हमें च्यू करने में थोड़ा हार्ड लगता है, हम और कोशिश करते हैं उसे च्यू करने के लिए. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली अवर टीथ गेट प्रॉपर एक्सरसाइज. ठीक है. इफ़ वी टेक ओनली हॉट फूड्स देन द टीथ बिकम वीक. एकदम गरम गरम खाना भी कभी नहीं खाना चाहिए. ठीक है. थोड़ा ठंडा हो उसके बाद ही खाना चाहिए. क्या होगा, वरना टीथ एकदम लूज वीक हो जाएंगे और वो जल्दी से टूट जाएंगे.
ठीक है। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोई नहीं करता है। वी शुड नॉट ईट टॉफीज, चॉकलेट, बिस्किट एंड स्वीट्स एट द टाइम ऑफ गोइंग टू बेड। एक्चुअली हमें ये हमारे डाइट में ज़्यादा इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए, पर स्टिल इसके बगैर अब कोई नहीं रह सकता, राइट। सो एक चीज़ है कि ये जो चॉकलेट्स, बिस्किट एंड स्वीट्स है, वो जब हम सोने जाते हैं रात को या दोपहर को, कभी भी जब हम सोने जाते हैं, उससे पहले हमें नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट इनटेक इट बिफोर गोइंग टू द बेड, ठीक है। वाई? बिकॉज दे लीव सब्सटेंस ऑन द टीथ दैट गेट मिक्स विथ एनिमल एंड फॉर्म्स डिप्रेशन ऑन द टीथ, डेप्रिशिएशन ऑन द टीथ। सी क्या होता है कि अगर हमने कोई स्वीट, चॉकलेट, बिस्किट्स खा लिए, तो वो जो हमारा टूथ एनिमल के बारे में हमने पढ़ा था, जो वाइट पोर्शन जो हम हमें विजिबल है, दैट इज़ द एनिमल। वहाँ पे वो थोड़ा सा कुछ रह जाता है, तो पूरी रात अगर हम सो गए, तो पूरी रात उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया और कोई भी जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो धीमे धीमे क्या होता है, हमारा टीथ सड़ने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए सोने से पहले कभी भी ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इफ़ अगर बाई चांस आपने खाई, तो यू हैव टू ब्रश योर टीथ। अगर खाओ कि ना खाओ, इट इज़ वेरी गुड हैबिट टू ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, ओके। नाउ सेकेंड इज मसाजिंग अ टीथ। टीथ को मसाज करना है। टू कीप टीथ हेल्दी, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्लीन them. We should also provide exercise to our gums. Gums should be massaged by clean fingers. Fibrous fruits and raw vegetables like guava, carrot, radish, turnip, etc. keep our teeth clean and also provide exercise to them. They also keep our teeth healthy. See, massaging the teeth मतलब हमारे फिंगर से जो गम है उसको हमें रब करना है और उसको भी एक्सरसाइज देनी है। सिर्फ टीथ को क्लीन करने से नहीं चलता है, हमें हमारे गम्स को भी एक्सरसाइज देनी पड़ती है। बिकॉज अगर गम्स हेल्दी होंगे तो ही वो टीथ को अच्छे से होल्ड करेंगे और हमारे टीथ स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड, रिंजिंग। वी शुड रिंस आफ्टर एवरी मील। मतलब हमें आफ्टर एवरी मील, हम जब भी खाना खाते हैं या कभी भी नाश्ता करते हैं, वी शुड वॉश अवर माउथ। हमें अच्छे से मुंह धोना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑल्सो गार्गल विद हॉट वाटर और सॉल्टी वाटर। थोड़े थोड़े टाइम में हमें हॉट वाटर या सॉल्टी वाटर से भी गार्गल करना चाहिए, हमारे माउथ को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ इज टू ब्रश द टीथ। Eat we don't brush our teeth after meals, then the food particles start to decay in our mouth. That result in decaying of the teeth. When a tooth gets spoiled, it becomes loose and later it fall down. See, हम कभी भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते, तो क्या होता है, जो हमने खाया हुआ है उसके पार्टिकल्स हमारे टीथ में ही रह जाते हैं, और वो पूरी रात रहने के कारण क्या होता है, उसमें जर्म्स एंड डिफरेंट पार्टिकल्स रह जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो धीमे धीमे क्या होता है, वो टीथ सड़ने लगता है, और थोड़े टाइम के बाद वो स्पॉइल होके कभी कभार क्या हो सकता है कि जल्दी से टूथ गिर सकता है, मतलब जल्दी टूथ खराब हो सकता है, ठीक है। और हम हमारे परमानेंट टीथ को एक बार लूज कर ले, तो हमें वापस वो उसी जगह पे टीथ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो हमें एक गुड हैबिट हमारे डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, दैट वी शुड ब्रश अवर टीथ डेली ट्वाइस, मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, ओके। द बेस्ट टाइम टू ब्रश अवर टीथ इज आफ्टर द मील. It is quite important to brush our teeth every morning and at the time of going the bed, as I just told. See, यहाँ पे कुछ बेस्ट मेथड दी हुई है टू ब्रश द टीथ, ठीक है। हमें ब्रश कैसे करना चाहिए, सबसे पहले ब्रश को हमारे टीथ के अंदर की तरफ साफ करना है, फिर बाहर की तरफ, इन ऑल द फोर कॉर्नर्स, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, हर जगह पहले अंदर की तरफ साफ करना है, देन आउटसाइड द टीथ, बाहर की तरफ टीथ साफ करना है, फिर अपर जॉ, लोअर जॉ, हर जगह से इन ऑल द फोर डायरेक्शंस हमारा ब्रश जाना चाहिए, ठीक है। इन दिस वे ओनली वी कैन क्लीन अवर टीथ वेरी परफेक्टली और वेरी क्लियरली, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज चेकअप.
We should consult a dentist at regular intervals. Each and every problem with our teeth should be reported to the doctor. See, हमें रेगुलर इंटरवल में थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, दैट मीन्स आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ्स हमें एक बार डेंटिस्ट के पास जाके हमारे टूथ को मतलब चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारे टूथ पे कोई भी इंजरी या कुछ भी होता है तो वो छोटी सी छोटी बात भी हमें हमारे डॉक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए, मतलब कंसल्ट करना चाहिए। ओके, नाउ प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कीप टीथ हेल्दी। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे टू रिमूव द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम देम। सी, हमने जैसे अभी पढ़ा था, वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस एट मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू द बेड एट नाइट, ठीक है। वी शुड ईट विटामिन्स एंड मिनरल्स कंटेनिंग फूड। See, in our food we should include vitamin, minerals, fibrous fruits and vegetables we should eat. We have to drink milk 2 or 3 times in a day. ये सब इंक्लूड करना चाहिए फॉर द क्या बोलते हैं हेल्दी टीथ। ओके, वी शुड अवॉइड स्वीट एंड स्टिकी फूड। जो स्टिकी फूड है, जो स्वीट्स है, उसे जितना हो सके हमें अवॉइड करना है, ठीक है, फॉर अ हेल्दी टीथ। वी शुड विजिट अ डॉक्टर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। 1 ईयर में ट्वाइस, 2 टाइम्स एटलीस्ट हमें हमारे डेंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट, डेंटिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीथ, ठीक है। यूज टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ऑफ अ रिलायबल ब्रांड। सी, ऐसा कोई भी उल्टा सीधा ब्रांड का हमें ब्रश यूज़ नहीं करना है, अच्छे ब्रांड का और सॉफ्ट, उसके ऊपर के जो ब्रश होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, वैसे हमें हमारे टीथ के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वरना टीथ खराब हो सकते हैं। Now next is microbes. Microbes are very small living things which cannot be seen through naked eyes. See, microbes क्या होते हैं? वो इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते, बैक्टीरिया होते हैं जो हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते। हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कभी कभी तो हम उससे भी नहीं देख सकते, इतने छोटे माइनर होते, इतने छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। सम माइक्रोब्स स्प्रेड डिजीज दैट आर कॉल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स जो कि डिजीज फैलाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया। माइक्रोब्स स्प्रेड रैपिडली where heat, moisture and air get. Microbes can damage our teeth. Some microbes are useful to us. See, जहाँ पे बहुत मॉइस्चर होता है, हीट होता है और गंदी जगह होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और माइक्रोब्स कैन डैमेज अवर टीथ ऑल्सो, हमारे टीथ को भी वो डैमेज करते हैं, ठीक है। बट फ्यू माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, सम यूजफुल बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैलिकस चेंज मिल्क इनटू कर्ड। सी, एक लैक्टिक एसिड करके होता है, वो लैक्टिक एसिड हम जो मिल्क दूध किस में कन्वर्ट होता है? कर्ड में। हम दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट, ठीक है। और वो लैक्टिक एसिड इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ माइक्रोब, ठीक है। एक टाइप का माइक्रोब, एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया की वजह से मिल्क इज चेंजिंग इनटू कर्ड, ठीक है। सम फंगी कॉल्ड यीस्ट हेल्प इन बेकिंग ऑफ डबल ब्रेड. Microbes are of different types like bacteria etc and virus, ठीक है। सी, जो ब्रेड, पाव, ये बनाने की, पिज़्ज़ा ब्रेड और जो भी है, ये सब बनाने के लिए हमें व्हीट फ्लोर में या हमें फ्लोर में ईस्ट डालना पड़ता है। ईस्ट इज़ नथिंग बट वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया ओनली। वो ईस्ट डालने से जो हमारा फ्लोर है, आटा है, वो डबल साइज हो जाता है बिकॉज बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन इट। सो हम फूड आइटम में भी कुछ कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, ठीक है। नाउ सम काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सी, हियर दे हैव गिवन 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज फर्स्ट इज बैक्टीरिया. Bacteria are microorganisms that present everywhere, even in our body.
Some of them spread pneumonia and diarrhea. See, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर जगह होते हैं, बट कुछ कुछ टाइप के बैक्टीरिया हमारे बॉडी को हार्म भी करते हैं. सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते, और कुछ डायरिया और निमोनिया जैसे डिजीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोब इज वायरस. वायरस आर द स्मॉलर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से भी एकदम स्मॉल होते हैं वायरस. हम बैक्टीरिया को ही हमारे नेक्ड आइज, हमारे आइज से नहीं देख सकते, और वायरस तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, ठीक है. दे स्प्रेड पोलियो एंड कोल्ड डिजीज़. पोलियो, कोल्ड डिजीज़, जो बुखार आना बहुत तेज, वो सारी जो डिजीज़ है दैट इज़ कॉज ड्यू टू वायरस. So here we are ending our chapter. Students, you have to read whole chapter 2 to 3 times and understand it very well.